नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। प्रदीप नामगियार जी वैसे दिख रहे थे पहले मुझे फ्रेम में, छोटे से आपका दायां कंधा दिख रहा। यस यस आई डोंट नो व्हाई, पहले नहीं दिखता था, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, लेकिन आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और चाइनीज में ni hao, जापानीज में konnichiwa, and of course bonsoir in French. Pradeep ji. Abaruyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. और आप सबको जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, हर हर महादेव. Now the point is, Pradeep ji, for the first time we have a prime minister who's actually talked about Coldplay. Yes, oh, wow, yes, this is yes. very lovely. We've actually got a prime minister who's talked about a pop group. I mean, yes. One of the biggest rock groups in the world, Coldplay, and the prime minister has actually talked about it, which is amazing. But I'm not surprised, considering the fact that the Coldplay concert was in Ahmedabad yesterday, and it was a full house. बिल्कुल sir. It's a huge stadium. My God, it was a full house. It was absolutely fantastic. And for the Prime Minister to mention that and then talk about the concert economy, my God, I mean, we're going in the right direction, I think. मुझे ऐसा लग रहा है। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? No, it's fantastic. I mean, the Prime Minister is talking about Coldplay, and the rest of us are talking about basic necessities of life. 2 बीघा ज़मीन, गोदान, पाथर पांचली, what is it? Anatomy of a famine. बिल्कुल. Bhuvan Shom. I mean. He's going to leave us far behind. That's what's going to happen. Art, music, literature, politics, economy. You talk religion, about anything. Religion. Kumbh Mela. History. He's made it a global event. Kumbh Mela इतना global event हो गया. People वाराणसी के लोग परेशान हैं कि influx एक दिन में कितने 8 करोड़ लोग वाराणसी के सड़कों में. I mean, wherever जहाँ भी कुंभ है, इलाहाबाद. Even Varanasi is flooded because people who to interact with from Varanasi बोले ये वाराणसी हम चल नहीं सकते because इतने लोग आए हैं वहाँ पर. इलाहाबाद तो प्रयागराज is beyond. The point is people are flocking. He's made it a global event. पूरे देश विदेश दुनिया से लोग आ रहे हैं and they are enjoying. The point is everybody is taking a dip. Everybody is taking a dip in the Ganga, which is dirty. बिल्कुल. बट सब कोई भी बिना डिप के वापस नहीं आ रहा है. द पॉइंट इज अगर 9 करोड़ लोग कल इकट्ठा होने वाले वहां पर या 10 करोड़ लोग कल इकट्ठा जो अमावस्या हर हर महादेव. यस यस मौनी अमावस्या वाले दिन 10 करोड़ लोग जाने वाले. होलीएस्ट डे. एंड बाय द वे प्रदीप जी, लेट मी टेल यू दिस, ये सुनने वाली बात है. It is going to be the holiest day in the last 144 years. Yes, 144 साल में सबसे पवित्र, सबसे आध्यात्म से सबसे भरा हुआ दिन बिल्कुल बिल्कुल कल होने वाला है. क्यों? Yes, yes. Because there are 4 planets in alignment. 4 planet जो है उनकी alignment है सन, जुपिटर, मर्करी, सैटर्न. सन, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, 4 इकट्ठे. 4 planets. Yes, yes, I yes. mean, oh God, this is going to be fantastic. इतने जो भी है मैनेज ना भी हो. महाराष्ट्र में जब कुंभ होगा, नासिक वी आर टॉकिंग अबाउट, इसी प्रकार से एक शानदार इवेंट वैसे ही होगा जैसे इस महाकुंभ में देखिए. I hope the Maharashtra government will see to it that the Godavari is clean. तो इसीलिए झगड़ा चालू है कि is Girish Mahajan going to be the guardian minister of Nasik or somebody else? That's right. Kokate wants to be the guardian minister या कोई और को guardian minister बनना है. I think Devendra Fadnavis should become the guardian minister. Very frankly speaking. नहीं उन्होंने अपने गढ़चिरौली सवाल करे हैं. सर दो ले सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं क्या? स्टील सिटी बनाऊंगा मैं, गढ़चिरौली को ट्रांसफॉर्म करूंगा. सर दो ले सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं. बिल्कुल बिल्कुल. He can take 2. और खड़गे साहब ने कहा है, ये तो देवेंद्र फडणवीस साहब हो गया. देवेंद्र फडणवीस साहब जरा परेशान है भी. क्या है कि वो लड़की बहन स्कीम की वजह से हर जगह से कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि यार देखो अपने पास पैसे बचे नहीं है बाकी स्कीम्स के लिए. प्रदीप जी, he is wearing a jacket exactly the color of your coat. Yes, दोनों we share the same kind. You should sue him. In any event, at the moment with us we've got very important guests indeed. माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छे दोनों बहुत बढ़िया गेस्ट हैं इस वक्त. प्रदीप पेशकर साहब will join us in just a little while. हेमंत कामले साहब from the Maharashtra Navnirman Sena. Pradeep Peshkar Saab has joined us. Arey, wonderful. Pradeep Peshkar Saab from the BJP. How are you, sir? Fine, sir. Fine. Thank you. हेमंत कामले साहब, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर. कैसे हैं? जय हिंद. और गोपाल तिवारी जी seems to be very busy.
गोपाल जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या देख रहे थे सर? क्या कुछ कर रहे थे? क्या क्या कर रहे थे सर? नहीं यू आर डूइंग समथिंग। वो कृष्णा जी के फोन थे तो देख रहा था। क्या बात है सर, सर जबरदस्त। भगवान की याद आप हमेशा रखते हो गोपाल। अरे सर क्या बात है। और अरे कल आपके कृष्णा जी है। हमारी कृष्णा जी, चलिए सर ऐसा है। अरे गोपाल तिवारी जी, फॉलोअप लेने में बहुत है, गेस्ट का फॉलोअप लेने में कृष्णा जी बहुत Yes, तगड़ी है। yes, yes, क्या बात है, कंटिन्यू फॉलो करते जबरदस्त, रहते हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आफ्टर अभी आपने उनकी इतनी प्रशंसा कर ली, शी इज गोइंग टू आस्क प्रदीप जी फॉर अ रेज। अब ये होने वाला है, वो बोलेंगे मुझे इंक्रीमेंट दे दो। नाउ पॉइंट इज सर, सर कल मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या। इट इज द होलीएस्ट डे ऑफ द महाकुंभ। गोपाल तिवारी जी जरा कैमरे के सेंटर में आ जाइए ना, हमने पढ़ लिया जो पीछे आपके, पढ़ लिया, दिख रहा है, बहुत अच्छी तरह दिख रहा है, टेंशन मत लीजिए सर, बहुत बढ़िया दिख रहा है। आप अपनी शक्ल जरा सेंटर में कर दीजिए ना कैमरे के। हाँ बस फर्स्ट क्लास। तो ये सर, ये शाहरुख खान वाला पोज नहीं सर, प्लीज। हाँ ये राजेश खन्ना, ठीक है, फर्स्ट क्लास। गोपाल तिवारी जी, खड़गे साहब को ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या होता है? तुम लोगों ने इतने पाप किए, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी बार डुबकी लगानी पड़ेगी महाकुंभ में। सर महाकुंभ है, अब ये बोलने की आपको लगता है आवश्यकता है क्या गोपाल तिवारी जी? ठीक है सर, ऐसा है जी, बोलिए सर। ये देश के प्रति आस्था जो रखते हैं तो वो कृति में लाना चाहिए। तो उसका कितना आप प्रोपोगंडा करेंगे? जो देश की मूल समस्या है आज, देखो सर, महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग मारे गए हैं सर। वो जो बेचारा संतोष देशमुख था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, और वो लॉ एंड ऑर्डर का ठिकाना नहीं है सर महाराष्ट्र में। वो छोटी बच्ची के ऊपर जो इसने अत्याचार किया, उसको मरवा दिया। और ये बहुत ही सीरियस इशू के तरफ ध्यान देने के बजाय आप गंगा में, वो तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जब इंदिरा जी शंकराचार्य जी का आदर करती थी, उस समय रुद्राक्ष माला पहनती थी, उनके सामने नीचे बैठती थी, उनका आदेश का पालन करती थी। और रामायण महाभारत कांग्रेस के जमाना में हर घर घर पहुंचाया कांग्रेस ने, राजीव जी गांधी थे तब। हर रविवार को महाभारत लगता था और रामायण लगता था। तो ये जहां किस बात को महत्व देना है, आप प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री हो, कुछ भी बकते हो, आपके जो वास्तवता है उससे भी मुखर जाते हो। पंचायत से संसद तक बोले बीजेपी, अरे कहाँ है बीजेपी भैया? अरे संसद अपना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी के सहारे आपका सरकार चला रही है। महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी को आप भूल गए। मतलब आप इतना भी यूज एंड थ्रो मत कीजिए। आप हर एक आपके कलीग जो पार्टी है, उनकी एक अस्मिता है, उनको भी बरकरार रखने दीजिए। आपका इतना अहंकार हो गया कि बस आप जो कहेंगे वही दुनिया फॉलो करेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये डुबकी लगाने का मतलब ये व्यक्तिगत आस्था है। और सभी कांग्रेसी लोग भी गए। हमारे दिग्विजय सिंह तो नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, उसने भी किया। काफी लोग हैं, हम भी जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं। सर आप जा रहे हैं कुंभ में कि नहीं? सर बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि इसके लिए हमें कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सर कब जा रहे हैं? देखो, और उसके लिए लोगों की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं। बट गोपाल जी, सनातन धर्म का अपमान करना क्या हमेशा जरूरी है? सनातन धर्म का अपमान आप बार बार कर रहे हो। महाकुंभ को इतना ग्लोबल इवेंट बना दिया, करोड़ों लोग, कल 10 करोड़ के आसपास लोग महाकुंभ में जाके डुबकी लगाने वाले हैं। और खड़गे साहब उनके आस्था पर प्रश्न लगा रहे हैं कि डुबकी मारने से पॉवर्टी, गरीबी हटने वाली है क्या, मिटने वाली है क्या? क्या ये आलोचना, क्या डुबकी लगाना एक जो श्रद्धा है, दिल में श्रद्धा है भगवान प्रति मांग, तो उस श्रद्धा को सनातन धर्म क्या इसको अपमान नहीं माना जा सकता? तो फिर पीछे क्यों लिया? खड़गे साहब ने माफी क्यों मांगा? देखो, उन्होंने ऐसा है कि उनका कहना है कि आप कोई बात का कितना ये करोगे। जो देश के आगे जो समस्या है सर, अमेरिका क्या हालत कर रही है हमारी लोग। उन्होंने यहाँ तक इनको विश्व गुरु कहने वालों को बुलाया तक नहीं। चाइना की क्या वहां पे कंडीशन है? रुपया गिरता चला आ रहा है सर, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को मतलब आज वह मिडिल क्लास जो है बिल्कुल नीचे जा रहा है। ये सब
बातें हैं तो उसका आप तो सर उसका महाकुंभ से क्या लेना देना है? आई डोंट अंडरस्टैंड। और बार बार सर और इसका मतलब अनस है, अरे कांग्रेस ने तो सनातन धर्म, मैं तो बोला हूं ना, रामायण महाभारत कांग्रेस के जमाने में तो बताया गया है। आई एग्री विद यू सर। और जो आपने एग्जांपल दी सर, और जो आपने एग्जांपल दी आदरणीय सम्मानीय इंदिरा जी की, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इंदिरा जी नहीं गई, कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं है जहां पे इंदिरा जी नहीं गई, लेकिन उस वक्त मीडिया इतना ज्यादा नहीं था। अगर होता तो आज जैसे हमको ये अमित शाह साहब यहां दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं, वैसी इंदिरा जी भी दिखती। सीधी सादी बात है ना सर। एट दैट टाइम देयर वाज नो मीडिया। मीडिया क्या था सर? ऑल इंडिया रेडियो, थोड़ा बहुत दूरदर्शन, और उसके अलावा न्यूज़पेपर्स थे। दैट्स इट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्रोलिफरेशन ऑफ द मीडिया हैज आल्सो लेड टू दिस। मेरा ये कहना है, प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा सर उसका सीधा साधा जवाब दें, इसके पहले कि मैं हेमंत कामले साहब के पास जाऊं, उसके बाद मैं प्रदीप पेशकर साहब के पास जाता हूं। सर, महाकुंभ को सवाल उठाने की आवश्यकता क्या है? सबको मालूम है, निर्धनता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, रुपया गिर रहा है डॉलर के बनस्पत, मानते हैं, ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप, industrial progress is slowing down a little bit. I agree with you. But what does that have to do with Mahakumbh? Why do you have to question Mahakumbh? महाकुंभ आस्था का विषय है सर। हर 12 साल के बाद महाकुंभ होता है, तो उसको मतलब उस पर सवाल उठाने का क्या मतलब हुआ? अब आप बताएं गोपाल तिवारी जी। सर, उन्होंने बिल्कुल कोई सवाल उठाया नहीं, उसके बारे में कोई ऐसा है कि आप उसके पीछे आप मूलभूत समस्याओं के से छिपे जा रहे हो और उसी का बात मतलब ये कर रहे हो, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, ये गलत है। अगर राजनेता, देखो राम मंदिर का भी आपने कितना किया, अरे भाई ये तो आस्था का विषय, ये तो हमेशा गौरव का विषय, इसके लिए कांग्रेस ने हमेशा सहारा है इसको, और उसके बारे में कोई दुमत नहीं। लेकिन आप उसी के ऊपर एक ही एजेंडा लेके जा रहे हो, इसके पीछे रहने का मतलब उनका यही था। राइट। सो लेट मी गो टू हेमंत कामले साहब। हेमंत कामले साहब, एक तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप दूसरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जिनको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपका जो कैंपेन था, और मैं सबके सामने ये बोल रहा हूँ, गोपाल तिवारी जी भी उस दिन थे, मैं आपके सामने दोबारा उनके सामने बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो आंदोलन था, लाउड स्पीकर्स को लेकर के, पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है अ लाउड स्पीकर इज नॉट एसेंशियल टू रिलीजियस रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस। This is what the Bombay High Court has said. So congratulations to you, sir. What a great job done. दूसरी चीज, अभी वो क्या है, वो डिज्नी हॉटस्टार पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक डेमोन्स्ट्रेशन करी कि भाई कमेंट्री जो है मराठी में भी होनी चाहिए। उस विषय के बारे में जरा बताएंगे सर, हेमंत कामले साहब। जी प्रदीप जी और राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने कुछ तो काम किया जिसका आपने क्रेडिट हमें दिया। मतलब पब्लिक, आप तो हमेशा हमें अप्रिशिएट करते हो, पब्लिक अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होता है। पहली बात आपने कही जो लाउड स्पीकर की बात, तो रिलीजियस प्लेसेस की जो बात की, तो हम पिछले 3 सालों से तो ये चल ही रहा था जी हमारा आंदोलन, और स्वर्गीय बाला साहब ने इसके ऊपर पहले आवाज उठाई थी। लेकिन जब उद्धव साहब उनका जो भी उनकी गद्दी चला रहे, लेकिन उनके विचार आगे नहीं चला रहे थे, तो हमने इसको आगे चलाया। और कहीं ना कहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस पर जो भी मुहर लगाई कि भाई रिलीजियस प्लेस, दैट इज नॉट ओनली मस्जिद और मंदिर और गिरजाघर, इसमें भी रिलीजियस प्लेस में, रिलीजियस प्रोग्राम्स में इसकी जरूरत नहीं। दूसरी बात, हॉटस्टार या कोई भी चैनल हो, कोई भी जो जरिया हो, वहां पर आप मुंबई में हो, महाराष्ट्र में, बाकी सब अब हमारी 14-16 लैंग्वेज में आप कमेंट्री अगर दिखाते हो, तो मराठी क्यों नहीं दिखाते? ये हमारा मुद्दा था। तो और शायद हॉटस्टार ने वो मान लिया है। देखिए कैसे है ना कि मैं आज की इस चर्चा की विषय की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मैं तिवारी जी और हमारे दूसरे जो साथी है भारतीय जनता पार्टी से, हाँ पेशकर साहब जी, पहले कह कि ये जो मुद्दा है महाकुंभ का, जिस पर खड़गे साहब ने जो स्टेटमेंट किया है, हमें मतलब इन टॉपिक पर हम क्यों चर्चा करते हैं? ये हमारे मतलब देश की क्या मूल समस्या है? देखिए, कुंभ 144 साल के बाद ये महाकुंभ हो रहा है। 12 साल के बाद हमारे यहाँ पर कुंभ होता है, हर 12 साल के बाद अर्ध कुंभ होता है 6 साल के बाद। मैं आपको प्रदीप जी और सब महानुभाव को एक याद मतलब एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ।
कि मुंबई में जब मुंबई मार्च हम जो 4 नदियां हैं, बोईसर, दहिसर, ओशियर और मिठी, इसके लिए जब हमने एक यहाँ पर प्रोग्राम किया था माहिम नेचर पार्क में, और वहां पर हमारे चीफ गेस्ट थे मैगसेसे अवार्ड विनर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। That's right. सब उनको जानते होंगे, जी। उनको राजस्थान जी। चौड़ बाबा के नाम से उनको जाना जाता है। तो राजेंद्र सिंह ने उन्होंने एक मुझे किस्सा सुनाया था कि क्या हिम्मत आपको पता है कि कुंभ क्यों होता है? तो मैंने तो उनको जो पौराणिक मुझे जो कथा थी कि दानों का और देवों का जो युद्ध हुआ और वो सब, मैंने तो बोले ये तो है, ये पौराणिक कथा है, लेकिन कुंभ में ये ऐसा होता था कि जो भी ऋषि महंत या मुनि जो तप करते थे वो 12 साल का था, 12 साल का होता था। ये तो आपने भी सुना, मैंने भी सुना। जी जी। तो ये कुंभ में ये जो ऋषि मुनि संत महंत जो भी ये 12 साल में तप करते थे, मतलब क्या है कि हम हमारे निजी जिंदगी में जो जिंदगी जी रहे हैं इसमें जो फिर वो जीव शास्त्र हो या केमिकल में रसायन हो, भौतिक हो या शरीर शास्त्र हो, जो भी इस पर जो भी वनस्पति शास्त्र हो, जिसपे जो भी वो चिंतन करते थे या संशोधन करते थे, उसको लाकर एक जगह पर रखते थे। आज की तारीख में हम उसको कहते हैं पीएचडी किसी ने की है, किसी शोध को उसको एक जो ग्रंथ लिखते या प्रबंध लिखते हैं और उनको डॉक्टरेट या डीलिट की डिग्री दी जाती है। तो वैसे ही उस टाइप का एक कुंभ होता था। ये कुंभ का असली मतलब ये है कि जो हमारे मुनि थे, जो संत थे, जिन्होंने इतना कुछ हमारे यहाँ पर संशोधन किया, जो हम हमारे निजी जिंदगी में हर चीज, मतलब खाने पीने की चीजों से लेके हमारी रहन सहन, हमें सोना कब जागना कब, ये सब हम जो कहते हैं, जो आज की तारीख में हम व्हाट्सएप पे हमें दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, ये सब उन ऋषि मुनियों और संतों की देन है। ये हमारा 12 साल के तप के बाद एक वो जो संशोधन लेके आते थे, और वो कुंभ ऐसे कोई पर्टिकुलर फिजिकल कुंभ नहीं होता था, लेकिन सब ज्ञान एक जगह बांटते थे। ये असली कुंभ का मतलब उन्होंने मुझे समझाया था और लॉजिकली मुझे वो सही लगा था। जी, हेमंत जी, प्लीज आप फिनिश करें सर। हेमंत जी कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। तो अभी जो ये कुंभ का मेला है, ये आस्था की भावना है, मैं मानता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। और जिस तरह से व्यवस्था भी की गई है, तो मुझे लगता है अब तक कोई एक आगजनी जो हुई थी और उस पर जल्दी से कंट्रोल किया गया। ये सब होने के बावजूद कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि 50 से 60 करोड़ लोग जहां पर जा रहे आस्था से, तो हर किसी की आस्था का विषय हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस कुंभ के बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसको निपटने के लिए भी वहां पे प्रशासन को तैयारी करनी पड़ेगी कि 60 लाख लोग जब एक जगह जमा होते हैं, जगह आते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो भी नेचुरल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, इसको संभालने की, जो आपने कहा कि गंगा का पानी भी गंदा होगा या जो भी होगा, लिटरिंग होगा, यूरिनेटिंग होगा, उसको कहा कैसे प्रोसेस करें, मुझे पता नहीं है। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था की तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में। बट हेमंत जी, डोंट यू थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे कह रहा कि मैंने इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ा दिया, हर चीज जो सीक्रेट है, काशी हो, अयोध्या हो, अब महाकुंभ है, महाकाल कॉरिडोर, तो ही हैज डन समथिंग फॉर स्पिरिचुअल टूरिज्म लाइक नोबडी हैज डन बिफोर। महाकुंभ में करीबन 2 लाख करोड़ का धंधा, बिजनेस इकोनॉमी वो जनरेट कर रहे हैं। भले आपने कहा कि उसके आफ्टर इफेक्ट जो है उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बट हैज ही बीन सक्सेसफुल इन जनरेटिंग दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी, स्पिरिचुअल टूरिज्म इकोनॉमी? आप इसको कैसे देखते हो? Absolutely agree with Sir नरेंद्र मोदी। मैं इस बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो भी टर्नओवर हुआ है। लेकिन एक बात बताता हूँ राजीव जी और सभी को कि हमारे जो भारत देश में जो टूरिज्म है ना, वो पिलग्रिमेज टूरिज्म में ज्यादा होता है। आप अगर आंकड़े देखोगे तो हमारे यहाँ पर पिलग्रिमेज क्या होता है कि वैष्णो देवी गए, तिरुपति गए, शिरडी गए, फिर जहां पर शबरीमला गए, बाबा अमरनाथ गए, काशी गए, तो कामाख्या देवी पहले से इसका परसेंटेज जी। कामाख्या देवी आजकल बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे पॉलिटिशियन वहां पर ही जाते हैं। जब भी कोई सरकार गिरती है, तोड़नी होती है, तो पहले कामाख्या जाया जाता है। वहां पर
वहां पर कामाख्या से आशीर्वाद लिया जाता है, वहां पर उसकी सेटिंग हो जाती है। तो पिलग्रिमेज टूरिज्म ये इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, और मैं समझता हूँ कि मैं इसके लिए उनको बधाई भी देता हूँ कि ये सबसे बड़ा इवेंट उन्हें अब तक तो बहुत अच्छी तरह निभाया है, और इसके लिए कोई मतलब क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। हाँ, इसका पॉलिटिकल आप कितना माइलेज लेना चाहते हो, ये खड़गे जी जाने और मोदी जी जाने या अमित शाह जी जाने। That's right. मैं समझता हूँ कि हमारी समस्या, हमारे पास बहुत सारी समस्या है, एक इवेंट होता रहेगा, लेकिन हमारी समस्या है, जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि अमेरिका में जो होगा उसके रिपरकेशन हमारे यहाँ पर क्या आने वाले, यूरोप में जो बंदी आने वाली है, वहां पर जो रिसेशन आने वाला उसका हमारे पर क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। पेशकर साहब, मेरे लिए एक बड़े गौरव की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि महाकुंभ इतनी अच्छी तरीके से आयोजित किया गया है। पिछला महाकुंभ कवर किया गया था, लेकिन लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबॉडी, इस बार की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस बार का जो आयोजन हुआ है, जो हम लोगों को खबरें आ रही हैं वो बहुत जबरदस्त हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज रह गई है सर, जो अभी अभी बात कही ना हेमंत कामले साहब ने, सुनने वाली है, जिन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की वो जो बात कर रहे हैं ना सर, ही इज दी मैगसेसे अवार्ड विनर एंड द इंटरनेशनल वाटर प्राइज विनर, स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनर, जिसको वाटर का नोबेल कहा जाता है। ही इज द विनर ऑफ दैट सर, 2012 में मिला था उनको। 6 राजस्थान के 6 नदियां जो लुप्त हो चुकी थीं, यही राजेंद्र सिंह जी ने उनको पुनर्जीवित किया। मेरा ये कहना है सर, जहां तक गंगा का प्रश्न है, बहुत अच्छा होता अगर गंगा का पानी वास्तविकता में अविरल होता, निर्मल होता और पवित्र होता। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है पेशकर साहब, पता नहीं इस विषय के बारे में आपको कितना मालूम है, आई डोंट नो। आपको मालूम है गंगा में इस वक्त गंगा जल नहीं है। गंगा जल जो है, इट इज ऑलरेडी ट्रैप्ड इन वेरियस वाटर रेजर्वायर्स ऑफ बिग डैम्स। जो गंगा जल इस वक्त है प्रयागराज में, वो अलग पानी है सर, वो गंगा जल नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बिकॉज यू नीड पावर, यू नीड द जनरेशन ऑफ पावर, आपको चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बिना किसी का काम चलता नहीं है, सो सम बैलेंस विल बी रिक्वायर्ड। बट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ ग्रेट महाकुंभ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये है, 2 सवाल है। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी ने कोल्ड प्ले की बात करी। कोल्ड प्ले इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंड्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने कल अहमदाबाद में परफॉर्म किया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं हु टॉक्ड अबाउट अ रॉक बैंड, और उन्होंने कहा कि एक कॉन्सर्ट इकोनॉमी हम लोगों को शुरू करनी चाहिए, पूरी दुनिया से आर्टिस्ट को यहां पर आना चाहिए और यहां परफॉर्म करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इंडिकेशन। अगर टैक्सेशन का प्रोसेस, बाकी प्रोसेस अगर आज ठीक हो जाए ना सर, जो हमारी जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है, आर्केक लॉज हैं सर हमारे कस्टम्स वगैरह के, जिसकी वजह से जो फॉर्मूला 1 था वो भी हिंदुस्तान से चला गया, क्योंकि वी वांटेड द फॉर्मूला 1 ऑर्गेनाइजर्स to give the exact amount of each car and deposit it with the customs. How can you do that, sir? It is not possible. Each car costs about $500 million. कहां से आप देंगे? Now, my point is, this is the first prime minister who's actually talked about the youth. Sir, जितने भी यंग लोग हैं, आप ये फुटेज देखिए सर, अहमदाबाद की फुटेज है ये कोल्ड प्ले की, कल की कॉन्सर्ट की, तो होल स्टेडियम इज फुल, और जितने लोग अंदर उतने ही बाहर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, जिनको टिकट्स नहीं मिली थी, 22-22, 25-25, 30-30 हजार रुपए लोगों ने खर्चे हैं टिकट के लिए, और उतने ही लोग बाहर खड़े हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू डू दैट। नाउ हाउ डू यू सी दैट? आपको कैसा लगता है? ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली टू कनेक्ट टू द यूथ, व्हिच इज अमेजिंग। अब आप बोलें सर, पेशकर साहब। सर, यहाँ तो बातें 2-3 प्रकार के हो चुकी है। पहले तो खड़गे जी के बारे में बात हुई, उस पर बाद में आऊंगा। पहले आपका सवाल का जवाब देना चाहूंगा जी। मोदी जी ने जो कनेक्ट निर्माण किया है युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, साधु संतों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, सबके साथ में जो चाहिए उस भाषा में वो बोलते हैं। भाषा मतलब सिर्फ बातों में नहीं, तो कृति में भी। उनके हर एक कृति में एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ होता है। अभी आपने कोल्ड प्ले की बात की, तो हम सिर्फ कहने से नहीं चलेगा कि हमारा देश युवाओं का देश है, हमारा सबसे युवा देश भारत देश है, हमारी जो डेमोग्राफी है
वो उसका एडवांटेज हमें लेना चाहिए। तो उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की भी बात कहनी चाहिए, कंपटीशन की भी बात कहनी चाहिए। उनको जो चाहिए युवा पीढ़ी को वो सब देने के लिए तैयार है। हम बहुत जल्दी कुछ सालों में ओलंपिक का भी ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं। ये भी बात मोदी जी ने कही है। तो ये दुनिया में भारत का एक दबदबा निर्माण हुआ है। वो 2014 के बाद मोदी जी ने जो इमेज खड़ी की, हमने आज तक क्या किया था पिछले 50-60 सालों में कि हमारी पॉपुलेशन इज लायबिलिटी, लेकिन यही रिवर्स कर दिया मोदी जी ने, इट इज एसेट। जब हम पॉपुलेशन को एसेट के तरीके से देखते हैं तो बहुत जल्दी हम पूरी दुनिया के लिए एक एसेट साबित हो जाएंगे। ताकि युवाओं का जो करिश्मा है, हम लोग आज जो ट्रम्प का गवर्नमेंट आ गया तो आप देखिए उनके जीत में भी भारत का हिस्सा है। उनके हर नीति में कुछ हो सकता है कि वो अपने देश के लिए करेंगे, लेकिन मोदी जी का करिश्मा सब दुनिया ने माना है। तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए करना तो मोदी जी की बिल्कुल प्रामाणिक इच्छा है, उसके तरीके से ये सब हो रहा है, एक बात है। और दूसरा, आपने जो कांग्रेस के बारे में जो बात चल रही थी कि सनातन धर्म का अपमान किया है और इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी हिम्मत कहां से आती है ये समझ में नहीं आता है। हमारी तो सीधी डिमांड है कि नेता विपक्ष जो माननीय राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, उन्होंने तो माफी मांगना चाहिए सारे हिंदुओं की कि एक बार राम का तो अपमान कर चुके हैं, कि राम का अस्तित्व ही नकार चुके हैं, कोर्ट में अस्तित्व नकार चुके हैं, तो अभी महाकुंभ का तो अस्तित्व मत नकारो, जनता ने तो आपको नकार दिया है। ये बात कम नहीं है क्या? ये क्या है? जनता ने आपको नकार दिया है, अभी तो समझो कि भारत की नस क्या है, भारत की आस्था क्या है। भारत ये एक राष्ट्र है, इसको मानने के लिए आप तैयार नहीं है। तो खरगे जी को अभी इतने बुजुर्ग नेता है, हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि 60 साल शासन किया कांग्रेस ने, तब गरीबी नहीं हटी। उनका ये जुमला ही रह गया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी नहीं, लेकिन आज आप आंकड़े देखिए 25% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो ये सारी चीजें देखने लायक है, समझने लायक है। पेशकर साहब समझेंगे नहीं, जनता उनको जवाब दे रही है। पेशकर साहब ना सिर्फ खरगे साहब ने बोला, खरगे साहब ने ठीक है सनातन धर्म और मोदी जी दुबकी हर चीज के बोले, रेवंत रेड्डी जैसे लोग भी अभी अटैक करने लगे, मोहम्मद गजनी को प्राइम मिनिस्टर मोदी से कंपेयर करने लगे। मोहम्मद गजनी ने इस देश में 18 बार रेड कर दिया, पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया। वही मोदी साहब हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उन्होंने संविधान को बदलने का ऑलरेडी नारा कर दिया, संविधान को बदलने वाले हैं, संविधान को राहुल गांधी बचा रहे हैं, रिजर्वेशन को खत्म करने वाले हैं, कंटिन्यूस अटेम्प्ट कर रहे रिजर्वेशन को खत्म करने के। रिजर्वेशन को क्या आप खत्म करने वाले हो, संविधान को खत्म करने वाले हो, किस प्रकार से देखते हो? बिकॉज कंटिन्यूस अटैक हो रहा है आप पर, और जो उनका कैंपेन भी है जय बापू, जय संविधान, जय भीम। देखिए, बोलिए पेशकर साहब। संविधान का पिछले एक डिबेट में मैंने बोला था, संविधान का अपमान या मोड़ तोड़ जितनी कांग्रेस ने की है उसकी उतनी किसी ने भी की नहीं है। संविधान की प्रतिष्ठा रखना ये सिर्फ भाजपा जानता है, और इसका जवाब तो इस इलेक्शन में दे दिया ना। उस समय हम भी झांसे में आ गए, और लोकसभा इलेक्शन के समय उनका जो जुमला चल पड़ा कि उन्होंने सब लोगों को एक झूठी अफवाह फैला दी, तो इसका भुगतना पड़ा हमें। लेकिन उसका करेक्शन इमीडिएटली महाराष्ट्र विधानसभा के समय ध्यान में आ गया कि कौन संविधान के खिलाफ लड़ रहा है। अभी तक राहुल गांधी जी के जवाब का हम लोग एक है कि संविधान को पन्ने कितने हैं, उनको तो संसद में पूछा था अनुराग ठाकुर जी ने। तो ये बताइए, उन्होंने संविधान पढ़ा है क्या? कितने बार उन्होंने उसमें मोड़तोड़ की है उसकी? तो ये कांग्रेस वाले ना बोले, सिर्फ वो बात रहेगी, ऐसे ही रहेगी। लेकिन जो जनता है वो समझ चुकी है कि सच में भाजपा के सिवा कोई संविधान का सम्मान नहीं करता है। संविधान के साथ में अंबेडकर जी जो है, पूजनीय अंबेडकर जी का कितना अपमान किया है, कितनी बार हम पढ़ना चाहिए। माननीय अंबेडकर जी को पढ़ा है क्या इन्होंने? यही मुझे आश्चर्य लगता है कि इन्होंने कभी आज तक अंबेडकर जी को पढ़ा ही नहीं है।
तो जितना अपमान अम्बेडकर जी का कांग्रेस ने किया वो किसी ने किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि संविधान के बारे में वो अभी ना बोले तो अच्छा है। एक बार वो मुंह की खा चुके हैं महाराष्ट्र में, फिर अभी कर्नाटक में भी वही होने जा रहा है, या रेवंत रेड्डी उसी लाइन पर चल रहे हैं मुझे लगता है। तो सर ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो सवाल जरा रह गया। एक छोटी सी बात आपके पास आ रहा हूँ गोपाल तिवारी जी, आई हैव सीन यू, आई एम कमिंग टू यू। आप कुछ दिखा भी रहे थे मोबाइल पे। कौन सा? मैं आ रहा हूँ आपके पास गोपाल तिवारी जी। एक सवाल रह गया था सर कि जहां तक गंगा के पानी का प्रश्न है, गंगा जल का जहां तक प्रश्न है, वहां पर हमें सर वी हैव टू रियली वर्क वेरी सीरियसली सर। आई एम नॉट सेइंग इट इज योर फॉल्ट अगेन, यू हैव बीन इन पावर फॉर ओनली। सर पूरी बात सुन ले सर, पूरी बात सुन ले। आप 11 साल से, उसके पहले भी जितनी सरकारें आई, they were not able to do anything. My point is we have to take it very seriously sir, otherwise I am not joking. यही राजेंद्र सिंह साहब, इन्होंने ये कहा है, मैं आपको बता दूं, मेरे ही शो में कहा है, और मेरे शो में, यहाँ पे आरकेबी शो में प्रदीप जी और मेरे साथ, वो तकरीबन 6 के 7 बार आ चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो द साइंस आर ऑलरेडी देयर ऑफ द डेजर्टिफिकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। वो साइंस शुरू हो गए हैं। 50 या 60 साल के बाद हो सकता है मां गंगा धरती से विलुप्त हो जाए, ये भी हो सकता है। आई एम नॉट जोकिंग सर। जिस तरीके से हम लोग उसको कैद कर रहे हैं, डैम्स बना करके, बांध बना करके, सुरंगों में डाल करके, दैट इज नॉट द वे टू डू इट। आज की तारीख में सर स्पेन में जो बड़े बड़े डैम्स हैं उनको डिसमेंटल किया जा रहा है। पूरे यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े डैम्स हैं उनको हटाया जा रहा है, रन ऑफ द रिवर डैम्स बनाए जा रहे हैं, चाइना को छोड़ के। बट चाइना इज अ लॉ टू इटसेल्फ, उसकी बात कभी बाद में बात करेंगे। आप बताएं सर उसके बारे में जरा हम गंभीरता से कब देखेंगे मां गंगा को। वैसे हम मां गंगा कहते हैं, पूजा करते हैं अपनी मां को, लेकिन अपनी मां के अंदर क्या हम इतना ज्यादा 3 लाख टन हर रोज मलबा डालते हैं क्या हम अपनी मां में? आप बताएं सर प्लीज। पेशकर साहब। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। माननीय राजेंद्र सिंह जी नासिक में भी बहुत बार आते हैं, हम भी उनका गाइडेंस लेते हैं, और ये बात सच है कि उनका नॉलेज का सम्मान करना चाहिए, उन्होंने दिए हुए एक्शन प्लान पे चलना भी चाहिए। और मैं आपको इतना बता दूं कि मोदी सरकार आने के बाद में गंगा मिनिस्ट्री एक अलग से बनाई है। गंगा मिनिस्ट्री जो गंगा मिशन जो किया है, क्लीन गंगा मिशन, क्लीन गंगा मिशन के, और वो 1 दिन 2 दिन में और सिर्फ सरकार के उपाय योजना से होने वाला नहीं है, समाज को भी उसमें ऐड होना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो एनर्जी जनरेशन के लिए जो डैम बनते हैं या एग्रीकल्चर के लिए जो डैम बनते हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसको अल्टरनेट ढूंढने की जरूरत है। ये तो बात सच है। जब हम अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तरफ जा रहे हैं, सोलर मिशन की तरफ अब ऑलरेडी जा चुके हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो खत्म होगी, लेकिन एग्रीकल्चरल के लिए तो पानी तो लगेगा ही। तो उसके लिए डैम का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन हो, वो तो टेक्निकल स्टडी का भाग है। लेकिन क्लीन करने की बात जब तक है, तो क्लीन गंगा मिशन 2015 में शुरू हुआ और आज उसमें काफी सफलता मिल रही है, लेकिन उसमें बहुत सारी अभी सुधारना की आवश्यकता है, ये बिल्कुल मानते हैं सर। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, इसके पहले कि मैं गोपाल तिवारी जी के पास जाऊं, एक छोटा सा सवाल सर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग भी जो है ना, जो गंगा के आसपास जितने लोग रहते हैं और जितने भी लोग हैं जो गंगा को यूटिलाइज करते हैं सर, उनकी भी मुझे लगता है एजुकेशन की जरूरत है। उनका भी बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा, उनको भी जिम्मेवारी से पेश आना चाहिए। बिकॉज यू कांट डू दिस, वी कैनॉट डू दिस सर, वी हैव टू मेक इट अ प्रॉपर क्राइम। अगर कहीं पर भी कोई रिवर को पोल्यूट करता है सर, पहले आप हमारे 4 वेद पढ़ लीजिए, 14 महापुराण, 14 माइनर पुराण, 108 हमारे उपनिषद पढ़ लीजिए। हर जगह पे नदी को दैवत का दर्जा दिया गया है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि हमारा मैला जो है वो नदी के अंदर आए। मतलब हम लोगों ने जो मलबा डोने की जो गाड़ी है वो बना दिया है रिवर को। we have to do something here. People have to behave more responsibly, and I personally feel under the new laws there must be a law. अगर कोई पाया गया किसी भी रिवर को पोल्यूट करते हुए, उसकी ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए कि लोग 10 बार सोचें कुछ करने के पहले। मुझको ऐसा लगता है। आपको लगता है पेशकर साहब ये होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये लगता ही है। राइट, बिल्कुल ये बात नहीं है। बोलिए सर। अभी अभी मेरे जानकारी में शायद उसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन अभी जो क्लीन गंगा मिशन के अंदर और गोदावरी का भी
नीरी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो इंजीनियरिंग का ये है, एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है, उनको काम दिया गया है और बड़ी अच्छी तरीके से उनके गाइडेंस में क्लीन गंगा मिशन का काम चल रहा है और क्लीन गोदावरी का भी काम अभी शुरू हो गया है। तो ये बात समाज की भी है, सिर्फ उंगली दिखाने से काम नहीं होगा। आपकी, मेरी और सबकी जिम्मेदारी ये है कि गंगा को क्लीन रखे। और यहाँ के 4 रिवर, जैसे हेमंत कांबळे जी जैसे बोल रहे थे, यहाँ के 4, मुंबई के 4 रिवर, भले मोदी साहब आए, एसटीपीस के प्रॉमिस किया, बट हेमंत जी जब तक वहां बैंक से, कुर्ला के बैंक से जो ऑयल अंदर जा रहा है, जो मलबा फेंक रहा है, वो सब आपका बहुत, जब तक ये सब रहेगा कांबळे साहब, आपका ये संघर्ष जारी रहेगा। आई थिंक सो। गोपाल, राइट। गोपाल तिवारी जी, ये कहा गया राहुल गांधी जी ने क्या संविधान पढ़ा है, ये पूछा गया। अब आप बताएं सर, गोपाल तिवारी जी बोलिए। सर म्यूट पे आपका फोन, आपका म्यूट पे सर, आपका फोन म्यूट पे, जरा अनम्यूट करिए ना। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए प्लीज। देखो, अभी अभी कहा गया कि उस समय कांग्रेस ने गुमराह किया। मैं आपको अभी का ताजा उदाहरण देता हूँ। जो विवेक ओबेरॉय है ना, मिस्टर विवेक देबरॉय, उन्होंने बात रखी थी कि भारत को अलग संविधान की जरूरत है। उनको आज इन्होंने पद्मश्री दी है। जिनको आजादी भीख में मिली, वो कंगना रनौत को इन्होंने पद्मश्री दी। तो ये बिना कोई बीजेपी के बड़े नेता के मान्यता बिना ऐसे बातें नहीं हो सकती। ज्योति मिर्दा, हेगड़े, अनंत हेगड़े, यहाँ तक पंकजा मुंडे जी ने भी कहा था। और ये क्यों फिर नकार रहे? अगर आपके दिल में कोई है तो आप खुल के क्यों नहीं बता रहे, हाँ हम बदलना चाहते हैं? ये किसी को आगे करके पहले बात कहलवाना, फिर उसके ऊपर से रिएक्शन का एक अंदाजा लेना, ये क्या बात है? कई बार ऑफिशियली बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल नेताओं ने कहा कि हम 400 के ऊपर गए तो हमें संविधान बदलना है करके। और ये विवेक देबरॉय ने तो सबसे पहले बात, किसने बोला 400 के बाद में संविधान बदलेंगे? ये विवेक देबरॉय, और मैं बोला हूं ना, ज्योति मिर्दा और अनंत हेगड़े, ये सभी तो आपके एक्स सेंट्रल मिनिस्टर और सांसद है। ये आपके अयोध्या के जो लल्लू सिंह, जो पहले जो अभी चुनाव में हार गए, वो भी तो थे। ऑन रिकॉर्ड बात है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ऐसे थोड़ी कि लोग ऐसे बातों पे लोग विश्वास नहीं करते। लोगों को भी वो जो बातें सही लगी कि बिल्कुल हाँ इनका एफर्ट ऐसा है, तभी तो उन्होंने इतना 240 पे ला दिया इनको। और क्या बात करते। दूसरी बात, गंगा मिशन की जो बात है, तो बार बार 14 और 19 के चुनाव में यूपी में ये बात सामने आई। गंगा मिशन का क्या हुआ, क्या हाल है, उसकी श्वेत पत्रिका, व्हाइट पेपर क्यों नहीं निकालते? अभी अभी आपने कहा कि वहां गंगा जल पीने लायक नहीं है, तो फिर ये बातें जो है, तो पहले ये बातें सही करनी चाहिए ना। तो 10 साल में आपने क्या किया? कितना करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा हुआ, कहाँ गया ये पैसा? गंगा मिशन का क्या हुआ? कई बार उसके ऊपर बातें हुई, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। मतलब आप बताते एक है और करते कुछ है। ये कथनी करने में इनका फर्क है और कुछ नहीं। बस गोपाल जी, अगर हाल ही में राहुल गांधी जी ने कल यह कहा कि गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है उसको राम मंदिर में घुसने नहीं देता है, यह क्या सही है या झूठ है? एससी एसटी, दलित, ओबीसी, उनका एक ही काम है, या तो स्लेव्स बन जाओ या जेल में जाओ, राहुल गांधी जी का कहना। राहुल गांधी जी ये भी हाईलाइट कर रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू को राम मंदिर में इसीलिए ले गया कि वो ट्राइबल है। तो ये क्या झूठ फैलाने वाली बात है? इसमें सच्चाई क्या है? क्या आप एक वर्ग को झूठ बोलकर अपने पास ले आना चाहते हो वोट बैंक के हिसाब से? किस प्रकार से ये सब स्टेटमेंट को देखते हो राहुल गांधी जी का? देखो, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से बाय कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, हमारी कर्तव्य निर्भर, वो सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों से होना चाहिए था। अपोजिशन से, रूलिंग पार्टी से, सब लोग उसमें सम्मिलित होते थे। आपने उनको अधिकार छीन लिया राष्ट्रपति जी का। आपने राम मंदिर में कहाँ गए? फिर राष्ट्रपति मुर्मू जी आए क्या? जब उन्होंने अटल आडवाणी जी को जो भारत रत्न पुरस्कार दे रहे थे, तो राष्ट्रपति खड़े थे, हमारे पीएम बैठे थे।
ये कई बात है। तो इससे ऊपर आपकी मानसिकता दिखती है। और हम इससे जाति गणना इसलिए चाहते हैं कि जब उन्होंने तो संसद में कहा कि आपके जो 100 सेक्रेटरी है उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी एससी क्लास के, तो हम अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इनको साथ में लेके इनको जो सामाजिक इनकी जो पिछड़ापन है वो दूर करने के लिए इनको कुछ सालों तक हमें साथ में रखना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो फिर उसके तरफ से आप चलिए, वो सेंसस कीजिए, उससे पता चलेगा कि भाई कितना वर्ग सामाजिक पिछड़ापन से बाहर आया है। और 26 करोड़ लोग जनता गरीबी रेखा से बाहर आए। ये मनमोहन सिंह ने, प्राइम मिनिस्टर ने उस समय के कम से कम 117 उन्होंने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया, विद डेटा बताया, डाटा। और इसी का तो अभी कुछ बीजेपी के नेताओं ने उनका जाने के बाद वो उनको सराहा, उनको काम को सराहा। तो 117 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तो ये प्राइम मिनिस्टर का फर्ज नहीं बनता क्या कि गंगा मिशन का क्या हुआ इसका बताए, इसके बारे में क्या हुआ इसका बताए? ये तो बताने की जरूरत है ना सर। फिर भी ये तो अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागते ही है। अरे ये क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है महाराष्ट्र में? आप मतलब शर्म आनी चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि अभी आप बोल रहे, एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि हमको जनता ने मैंडेट दिया। अरे भाई कहाँ? वो चुनाव आयोग को 20 दिसंबर को जब चुनाव आयोग के राजीव कुमार जब बोलते हैं कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और उसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट महबूब पार्चा को जो ये देता है, उनकी पिटीशन अलाउड करके आपको उन्होंने जो मांगा था वो जानकारी देने के लिए कहते हैं, तो आप रातों रात उसको रूल में अमेंडमेंट लाते हैं। और कई बार अमेंडमेंट होती है तो अच्छे के लिए होती है, तो वो उसमें संविधान की धज्जियां या तोड़ मरोड़ करना नहीं बोलते उसको। अभी आपके तो कई काल में आप भी तो अमेंडमेंट ला रहे हैं ना, तो संविधान में अमेंडमेंट लाना, संशोधन लाना, इसका मतलब संविधान की तोड़ मरोड़ नहीं है ना, वो संसद में होता है ना, लोकतांत्रिक मार्ग से होता है। तो ये संविधान की तोड़ मरोड़ कहाँ है बताइए? तो गोपाल तिवारी जी, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, जो अभी प्रदीप पेशकर साहब, आपको अगर इतराज ना हो तो मैं बता दूं, आपने ये कहा कि राहुल गांधी जी को शायद ये मालूम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पेजेस हैं। मैं सबकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 251 पेजेस हैं, 251 पेजेस, 251 pages. There are 251 pages in the constitution. Not that it matters whether it is 251 pages or 100 pages or 50 pages or 2500 pages. Point is, we should read it. We should read the constitution and know what's in it, not the number of pages that there are. So let me come back to Hemant Kamble साहब. Hemant Kamble साहब, आपने जो बात कही, Kamble साहब, that I think is the most important issue which we are missing. We always do that. We miss the wood for the trees. Sir, the 4 rivers of Mumbai, we should start small. मैं कहता हूं, जैसे अभी पेशकर साहब नासिक से हैं, गोदावरी, आदरणीय सामान्य गोपाल तिवारी साहब पूना से हैं, वहां पे मुला मुथा, यहां पर देयर आर 4 रिवर्स सर। अगर हम लोग इन 4 जो अभी नाले बन गए, गंदे नाले बन गए, इन नालों को हम अगर नदी भी नहीं बना सकते, तो कामले साहब मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट आर वी केपेबल ऑफ रियली? हमारी कैपेबिलिटी क्या है? सारी दुनिया में हम लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे सारे हिंदुस्तानी आईटी कंपनी चलाते हैं। टुडे 3 of the most crucial posts in the Trump White House in the administration. I am not talking about secretary level. I am talking about in the White House. Who will decide who will be appointed to the White House? Guest list क्या बनेगी? किससे president मिलेगा? They are all Indians. Indian origin के लोग हैं। सर इतना कुछ हम लोग कर सकते हैं और हम अपनी 4 नदियों को हम साफ नहीं कर सकते। काबले साहब आप बताएं प्लीज। पहले तो इस डिबेट का रुख बार बार बदलता जा रहा है। मतलब हम महाकुंभ की बात कर रहे थे, मैंने कुछ बातें रखी थी मेरी, उसके बाद
वह संविधान की बात होने लगी, राहुल गांधी जी की बात होने लगी, फिर हम वापस अब रिवर पर आ गए। देखिए जैसे ना मेरे लिए तो ये रिवर का जो विषय बहुत ही मैं आस्था रखता हूँ विशेष में, क्योंकि इस पर मैं काम करता हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं और बहुत सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि मैं उसमें रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं। आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि व्हाइट हाउस में की पर्सन 3 या 4 लोग हमारे इंडियन है, हिंदुस्तानी है। जब वो वहां पर काम करते हैं, वहां की केसेस पर या जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो रिवर है या जो भी है, हमारे सिर्फ ये 4 रिवर नहीं, पूरी हिंदुस्तान जी, तो ये कर नहीं पा रहे। इसका कारण है सिस्टम। वहां के जो सिस्टम है, वहां के लोगों को एक वहां की इंडिपेंडेंस देता है, वहां पर उनको जो जिस विषय पर वो काम करते हैं वहां पर पूरी तरह सहूलियत होती है। यहाँ पर देखिए भले वो कांग्रेस को, लेकिन जयप्रकाश रमेश ने एनवायरमेंट में बहुत अच्छा काम किया, भले वो कांग्रेस के हो, लेकिन अब तक के मुझे जो सेंसिटिव एनवायरमेंट मिनिस्टर रखे तो मैं उनका नाम जरूर लूंगा, क्योंकि मैं उस विषय में आस्था रखता हूं। बात दूसरी ये है कि हम जो नदियों के, आपने कहा कि मैं आने वाले दिनों में गंगा विलुप्त हो जाएगी। आप उत्तरांचल में जहां से गंगा होती है, हिमाचल से आती है, वहां का पानी देखिए साफ सुथरा है। जैसे जैसे वो नीचे नागरी बस्तियों में आती है तो गंदी हो जाती है। तो एक तरफ आप कहते हो गंगा मैया और गंगा मैया को खराब कर रहे हो, आप बोल रहे हो यमुना मैया, वहां पर खराब करते हो। तो जितनी भी नदियां है, फिर हर गांव में एक नदी बहती है, वो उस गांव के लिए गंगा मैया होती है। लेकिन आज एक नदी ऐसे नहीं है, एक नदी नहीं है। मैं दुनिया के जितनी नदियों के बारे में मैंने पढ़ा है, यांसे हो या यहाँ की नाइल हो, नाइल वो पूरे लुप्त हो चुकी है, लुप्त हो रही है अभी, वो सबसे बड़ी नदी है वो। लेकिन यहाँ पर हमारी मेंटालिटी, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे यहाँ पर हर साल जो ग्लोबल मीट होता है, हम वहां पर सिर्फ बातें होती है, जब एक्शन प्लान की बात होती है ना तो हम मुकर जाते हैं उससे। एक्शन प्लान की बात होती है तो एक्शन प्लान में बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स लोग जो है उनको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, और सरकारें उन पर प्रेशर डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है। कि मैं आज आपके चैनल पर कहता हूं कि अगर हमें आने वाली जो नस्लें हैं उनको अच्छा वातावरण मिले, अच्छा एनवायरमेंट मिले, अगर हम सच में दिल से चाहते हैं तो वे कुछ जो चीजें हैं वो हमें बदलनी पड़ेगी, कुछ कानून है उन्हें सख्त करने पड़ेंगे। तो ये मुंबई की 4 नदियां हो या भारत की सब नदियां हो, या हमारे समुद्र को अच्छी तरह साफ होगा, या हमारा एनवायरमेंट जो हो अच्छी तरह हम उसको क्लीन रख सकते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग से हम अच्छी तरह फाइट कर सकते हैं। हेमंत जी, हाउ डू यू सी महाराष्ट्र? देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि महाराष्ट्र अर्थात थामणार नहीं, महाराष्ट्र अर्थात थामणार नहीं, विकसित भारत का जिस प्रकार से 1 ट्रिलियन, आई जस्ट कम टू गोपाल जी, इसको जरा खत्म कर देते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इट्स एसेंशियल दैट ही स्पीक्स ऑन दैट। 16 लाख करोड़ का एमओयू लेके आए फडणवीस साहब ने। उन्होंने छत्रपति संभाजी कोस्टल रोड को ज्वाइन कर दिया, अटल सेतु बना दिया, नवी मुंबई एयरपोर्ट, पालघर एयरपोर्ट जो 3rd एयरपोर्ट होगा मुंबई कनेक्टेड जो बोलते हैं, मेट्रो लाइंस करीबन 14, पॉटहोल फ्री मुंबई। तो हाउ डू यू सी, इज इट सिर्फ बोलना, क्या ऑन रोड ऑन जो फिजिकली आपको ये सब दिख नहीं रहा है, किस प्रकार से? एंड इफ ही सेज महाराष्ट्र अर्थात थामणार नहीं, डज ही रियली मीन इट? हेमंत जी। नहीं, कैसे है ना कि मैं कुछ बातों को अप्रिशिएट करूंगा कि 2014 से 24 में जो प्रोजेक्ट्स है वो उसका कंप्लीशन जो पीरियड था या कंप्लीशन टाइम है वो बहुत कम हो गया। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मुंबई का जो है बांद्रा वर्ली सीलिंग, आपको मतलब मैं शायद कभी कॉलेज में था तो 1999 में शुरू हो गया और 2012 में उसका उद्घाटन हो गया, मतलब 13 साल लगे। 400 सॉरी ठीक बोल रहे हैं सर, कुछ कहा देश बारे का? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो 2012 में इसका उद्घाटन हुआ, जो पब्लिक के लिए ओपन हुआ। उसका खर्चा था, जो प्रोजेक्ट है उसका खर्चा था 460 या 465 करोड़। हमने करीबन 1600 करोड़ पर खर्च किए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अभी ये 2014 से 24 अभी 25 में पहुंच गए, तो प्रोजेक्ट बहुत फास्ट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन
बेसिकली मैं समझना चाहता हूँ जैसे जिस तरह से हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, कॉन्क्रीट इज नॉट अवर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। मैं इस बात को कभी मानता नहीं हूँ कि सिर्फ कंक्रीट बढ़ेगा तो मतलब कंक्रीट के ब्रिज बनेंगे, रोड बनेंगे तो हमारा प्रोग्रेस हुआ। कहाँ पर है हमारे बेरोजगार की जो नौजवान है उनको 2 करोड़ जो नौकरियां मिले थे वो नहीं मिली। अब किसी ने जो कहा कि भाई हम करीबन 26 करोड़ से ज्यादा लोग जो है पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, उसका डेफिनेशन लास्ट टाइम मैंने भी पूछा था और जो मुझे जो जवाब मिले बहुत ही हास्यास्पद थे। अब हमारे यहाँ पर एक है कि जितने भी करोड़ जो अरबोपतियों की जो संख्या है उसमें हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर, 1 नंबर यूएसए अमेरिका है, 2 नंबर पर चाइना है, 3 नंबर पर इंडिया है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम कितने हैं? 148 आउट ऑफ 197। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम किस तरह से देशपांडे साहब जो बैठे हैं वो इसका किस तरह से स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इसके लिए कि हम जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह के हम आंकड़े पेश करते हैं, इसका निजी जिंदगी में जो आम आदमी है उसको कितना फायदा पहुंचता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। क्योंकि हमारी जो आबादी है, जो 150 करोड़ की आबादी है, वो मोस्ट ऑफ 10% आबादी होगी जो अरबोपति या खरबोपति के लखपति होंगे। लेकिन बाकी सब जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इसके बारे में मोदी सरकार या भी जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह से प्लानिंग कर रही है, ये जानना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू। पेशकर साहब, महाराष्ट्र आता थांबणार नहीं। फडणवीस साहब ने क्लियर कट एजेंडा क्लियर है, 16 लाख करोड़ का एमओयू लेके आए हैं और यहां पर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अभी 2 दिन पहले ही छत्रपति संभाजी कोस्टल रोड को जोड़ दिया। हाउ डू यू सी इसी, जैसे हेमंत जी ने पूरे डेफिशिएंसीज दिखा दिए, सुना दिए, हाउ यू गोइंग टू रिएक्ट टू दैट? नहीं, कैसा है, अभी पूरे कंपटीशन में देवेंद्र जी ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र आता थमणार नहीं, और जिस स्पीड से महाराष्ट्र जा रहा है इसका भी हेमंत जी ने कहा है कि जिस स्पीड से प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से अभी आगे भी उससे ही ज्यादा स्पीड मिलेगी। ये क्यों होता है, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट क्यों आई है, इसमें जरा गौर करना चाहिए। एक पहले तो स्टेबिलिटी, स्टेबल गवर्नमेंट, ये इंडस्ट्री कोई भी इन्वेस्टर देखता है कि यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट है। दूसरी चीज, इसमें जो लीडरशिप है, आदरणीय देवेंद्र जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो और अजित पवार जी हो, ये फर्म लीडरशिप है और इसमें डिसीजन लेने के लिए कोई कसर छोड़ते नहीं है। ये तो प्रो इंडस्ट्री डिसीजंस आर टेकन वेरी फास्टली। तो इसमें 16 लाख एम्प्लॉयमेंट आने की संभावना है, एमओयू में वो अंकित है। तो मुझे लगता है कि लास्ट पिछले कितने भी इस प्रकार के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे ज्यादा एमओयू और सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स ने अपना ये दिखाया है, इंटरेस्ट दिखाया है, महाराष्ट्र में दिखाया है। पर बहुत सारे हमारे भारत के अलग अलग राज्यों के सीएम वहां थे, उनको क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली कि महाराष्ट्र के मुकाबले वो कहीं नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन करने के लिए जो इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंट की थी एकनाथ शिंदे जी ने और देवेंद्र जी ने, उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी चालू हुआ है। ईज ऑफ डूइंग के रैंकिंग में महाराष्ट्र काफी आगे निकल चुका है। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अलग तरीके से देखो, पहले उद्धव ठाकरे जी भी गए थे दावोस में, जो आदित्य ठाकरे और वो गवर्नमेंट में, तो क्या हुआ उस समय मेरे बैकग्राउंड से नहीं है। बोलिए हेलो, बोलिए सर, बोलिए। सरकार में जब दावोस का ये हुआ तो वहां उस समय क्यों नहीं आए? उन सबको पता था कि ये लोग खंडनी बहादुर लोग हैं, ये लोग उद्योगपतियों के बंगले के नीचे बम लगाने वाले लोग हैं। वो कैसे विश्वास दिलाते हैं? वो कहां से विश्वास दिलाएंगे? आज ये है कि इंडस्ट्री के लिए पूरा रेड कारपेट है और एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्री चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चाहिए, यही पूरा उद्देश्य है। एक बार इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की बात पूरी निकल जाते हैं। 16 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है जी, 16 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है और 16 लाख जॉब्स बनेंगी, यानी 1 करोड़ पर जॉब। इज दैट व्हाट वी आर सेइंग? एक नौकरी, एक करोड़ के पीछे एक नौकरी।
नहीं, वो कैसा रहता है, एवरेज है, सबने जो दिया हुआ है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें है, ग्रीन हाइड्रोजन का भी इसमें है, हर एक सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए है, एग्रो इनोवेशन के लिए है, स्टील है, सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आई है। 1 सेकंड सर, हेमंत कामले जी सेक्टर में और सारे रीजन में भी आई है। पेशकर साहब 1 सेकंड, हेमंत कामले जी, यू वांटेड टू से समथिंग, बोलिए सर। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि दावोस से 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। मुझे तो मैं सर एमओयू साइन हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं आई है कि भाई नहीं एमओयू साइन किए ना, तो जिन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए ना उनके नाम जरा कुछ अगर पब्लिश करे। और दूसरी बात, ये महाराष्ट्र के किस किस इलाके में ये इन्वेस्टमेंट जाने वाली, वो फैक्ट्रीज लगने वाली है या इन्वेस्टमेंट आने वाले। क्या है कि मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि जो भी इन्वेस्टर आते हैं ज्यादातर पूना या वेस्टर्न रीजन में होता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो रीजन है, पूना से लेके सोलापुर, मराठवाड़ा में क्यों नहीं आते, कोंकण में क्यों नहीं आते हैं। पहली बात, केसकर साहब मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि 16 लाख करोड़ के एमओयू करके आई है। और मैं पिछले 5 सालों से तो देख रहा हूं बहुत सारे दावोस में एमओयू होके आते हैं लेकिन फैक्ट्रीज नहीं लगती। आपको एग्जाम्पल बताता हूं, हमने वेदांता का तो सुना है जी, वेदांता में महाराष्ट्र में आई, फिर हम गुजरात में गए, सब कुछ होगा। देखिए वेदांता का जो इनकॉर्पोरेट दिखाया था वो 10 लाख का ये दिखाया था कैपिटल इनकम, पता है जी, और नौकरियां मिलने वाली थी 45,000। मेरी समझ के बाहर की बात है। बहुत सारे आप एमओयू लेके आते ना, एमओयू के साथ आप हर कौन से इलाके में फैक्ट्रीज लगने वाली है, कहाँ पर लगने वाली है। अगर हमें पूरा पब्लिक डोमेन में है सर आप पढ़िए, पूरा पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अभी रिलीज की है, सीएम ऑफिस ने रिलीज किया है। थैंक यू वेरी मच, मैं जरूर चेक करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा। लेकिन एक बात, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर भी काम करिए। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रही है, जिस तरह से आपने तो एक बीड़ का मतलब, पहले तो बीड़ जाना जाता था कि किसानों की आत्महत्या के लिए, अब बीड़ जाना जाता है बीड़ का बिहार हो गया, ऐसे कहते हैं। इसको शायद आप कहेंगे कि विरोधी ने वजह से बोला, लेकिन नहीं, ये वाल्मीकि करार एक दिन में पैदा नहीं हुआ है, एक दिन में बड़ा नहीं हुआ है। इनमें इसको बड़ा करने में सभी पार्टियों का हाथ है। वहां के जो भी सरकारें आई, जो भी वहां पर सपोर्ट दिया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत बहुत बधाई। हम कहेंगे कि भाई महिला सुरक्षा पे भी काम करिए, आप युवा के रोजगार पे भी काम करिए। आप तो डेवलपमेंट जो एमओयू किए तो रोजगार भी आएंगे। आपने कहा 15 लाख या 16 लाख रोजगार होंगे, बहुत अच्छी बात है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे भी काम करिए, आप महिला सुरक्षा पे भी काम करिए, किसानों के प्रॉब्लम पर भी काम करिए। आपको बहुत सारी बधाइयां। जहां जहां पर सरकार अच्छी काम करेंगे वहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके साथ रहेंगे। जहां जहां पर आप गलती करेंगे, आपकी गलतियों पर उंगली रखने का काम हम करेंगे। और शायद हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो अधिकार दिया है, हमारे डेबल क्रॉस से नहीं वो अधिकार दिया। गोपाल जी, जैसे हेमंत जी ने कहा, गोपाल जी की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, भीड़ का उदाहरण दे दिया। यहाँ बाबा सिद्दीकी, सैफ अली खान, सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई, इंडस्ट्रियलिस्ट से एक्सटॉर्शन करना, ऑर्गेनाइज क्राइम रैकेट, क्या काबू पाया है गोपाल जी लॉ एंड ऑर्डर? गोपाल जी आप हेलो बोलिए। मैं हेमंत जी के सब्जेक्ट के ऊपर आने के पहले मैं सिर्फ एक बात ध्यान में लाता हूँ। अभी आप माँ गंगा और गंगा मिशन की बात की, उसमें मैला डाला जा रहा है और हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि सबकी भी जिम्मेदारी है वहां पे उसको साफ सुथरा रखने की वगैरह वगैरह। मैं एक बात है, मैला डालेंगे वो ड्रेनेज वाटर उसमें छोड़ने के लिए क्या प्रिवेंशन किया है वो सब जान दो। अभी कोरोना काल में जब यूपी में हमारे योगी जी थे, प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल में थे, तब कोरोना के काल में कितनी लाशें गंगा में बहती थी, आप सबने और हमने देखा है। वो उसको भी प्रिवेंट नहीं कर पाए। कोरोना काल की जो लाशें है तो
तो कैसे उसमें आप देखो ना, मतलब आप अभी अभी की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, उसको प्रतिबंध नहीं लगा पाए कि भाई एक भी लाश गंगा में नहीं जाएगी, और आप गंगा की बात करते हैं। और दूसरी बात रही अभी जो दावोस के बारे में, और इन्होंने, हेमंत जी ने जो बातें उठाई है, बिल्कुल सही बात है, उनके साथ मैं सहमत हूँ। ये हमारे जो कामरे जी थे, उन्होंने कहा कि भाई खंडनी बहादुर लोग थे उस समय। अरे भैया, खंडनी बहादुर तो आपके नीचे है, नाक के नीचे है ना। वाल्मीकि कराड़ के ऊपर तो खंडनी बहादुर 2 करोड़ रो आघात जो कंपनी है भीड़ में, उससे 2 करोड़ की वसूली तो उन्होंने की। और आपके साथ में फोटो है, हमारे फडणवीस जी के साथ में फोटो है, उनको तीनों पवार जी, अजित पवार जी, एकनाथ शिंदे और फडणवीस जी के साथ में सब सोशल मीडिया में फोटो चली है। तो 2-2 करोड़ की तो खंडनी बहादुर तो आपके नाक के नीचे है, आप कुछ नहीं कर पा रहे सर। दुख की बात है वहां पे कि देखो एक बंदर उनको अरेस्ट किया है, उनके ऊपर मोका लगाया गया है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अरे तो आप देखो, अगर उनका जो कहे जाते, देखो वो तो संतोष देशमुख आपका ये था, फिर भी हम उसके लिए एक मानवता की दृष्टि से हम उसका मुद्दा उठा रहे, संतोष देशमुख के बारे में हम मुद्दा उठा रहे। लेकिन आप सुरेश धस, आज अभी ये देखो, मराठी चैनल देखो, सब वही चल रहा है आज दिन भर से, सबके सब मराठी चॅनल पे। वो सुरेश धस काय म्हणतात त्याच्याशी मला काय घेणं देणं नाही, हे कोण मी बोलत नाहीये, हे आपले माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा बोलतात साहेब, हे मी नाही बोलत आहे। तर ते सुरेश धस हे तुमचा आमदार है, और प्रदीप जी और राजीव जी, ये सुरेश धस जो बराबर है, उनके पीछे हम लोग हैं, उनके पीछे हम है, लेकिन आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, उनको कुछ भी नहीं। अरे ये अभी क्या हंसी, मतलब देखो, सत्ता बचाने के लिए एक बंदरगी की एक मराठी में कहानी है, माकडी जेव्हा पाण्यात डुबती ना तेव्हा पिलाला पायाखाली गेलती। ये बीजेपी की जो संतोष देशमुख की हत्या हुई है और जो सुरेश धस है, वो सत्ता बचाने के लिए, उनकी भी बलि चढ़ाने के लिए बीजेपी तैयार है, ऐसा ही दिख रहा है आज का माहौल। तो वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे उनको। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या नहीं कुछ? अगर आप ये कहते हैं कि उनके, अरे तो ये तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई इंक्वायरी पूरी होने के बाद उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ तो उनको वापस मंत्रिमंडल में लेने। वो अंजलि दमानिया पूरे सबूत साबित कर चुकी है सामने, और फिर भी आप कुछ भी नहीं कर रहे। इतनी क्या हताशा है, इतनी क्या मजबूरी है, इससे ज्यादा मजबूरी क्या हो सकती है आपकी? जिसके पास सबूत है वो एसआईटी को दे, जिसके पास सबूत है वो इंक्वायरी कमीशन को दे। मीडिया में बोलते नहीं होता है, मीडिया में बोलते नहीं होता है, जो सबूत है वो इंक्वायरी कमीशन को दे देना। मेरे को बीजेपी के नेताओं पे तरस आ रही है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता को न्याय नहीं दे सकते। आप जनता को क्या न्याय देंगे? आप बीजेपी के जो संतोष देशमुख के प्रति न्याय नहीं दे सकते, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? सुरेश धस वो बोले, कुछ भी बोल रहे, अरे एमएलए है वहां पर, वो बीजेपी का है, ये बात बोल रहे आप। उनको कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, और उनको अरे उन्होंने तो उठाया तो अभी देखो ना, अभी क्या बात कर रहे, उनके बारे में स्टेटमेंट के बारे में क्या लेना देना नहीं बोल रहे आपके डिप्टी सीएम, हम नहीं बोल रहे, आपके पेशकर साहब गोपाल तिवारी जी का इशारा इस तरफ है, और हेमंत कामले साहब ने भी यही बात बोली कि वाल्मीकि कराड़ जैसा शख्स जो है वो एकदम तो पैदा नहीं होता है, काफी साल लगते हैं ना वो माफिया बनने में, इतना बड़ा नेटवर्क बनने में, इसलिए एमसीओसीए लगाया गया है ना सर। नाउ द पॉइंट इज, उनके संबंध जो हैं आदरणीय सम्मानीय धनंजय मुंडे साहब के साथ है। आपको लगता नहीं है कि आई नो मिस्टर फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस साहब इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। आपको लगता नहीं है कि फडणवीस बोलिए सर प्रदीप जी एक मिनट। अरे सर, राजीव पंकजा मुंडे ने ये कहा है एक सत्कार में की ज्याच्या वाल्मीकि कराड शिवाय त्याचं पान हालत नाही ते वाल्मीकि कराड धनंजय, ऐसे एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जब उसने पंकजा मुंडे ने वाल्मीकि कराड को स्टेज पे बुला के सत्कार किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि
ज्या धनंजय मुंडेंचं वाल्मिक कराडच्या शिवाय पान हालत नहीं, त्यांना ते वाल्मिक कराड ऐसा करके उन्होंने सत्कार किया। अब मैं सवाल पूछ लूं सर, अब आपकी इजाजत, अब आपकी परमिशन हो तो मैं पेशकर साहब से सवाल पूछ लूं सर। पेशकर साहब, आपको लगता नहीं धनंजय मुंडे साहब का इस्तीफा ले लेना चाहिए फडणवीस साहब को, कि भाई देखो यार, वी आर गेटिंग एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आप जरा कृपा करके प्लीज स्टेप डाउन। क्या है उसमें, प्रॉब्लम क्या है? पेशकर साहब बताएं प्लीज। उनके ऊपर सत्ता थोड़ी डिपेंड है। आप ये देखिए कि विरोधक जो बोलते हैं उसके हिसाब से सब चले, ऐसा होता नहीं है। जो इंक्वायरी में आएगा, जिसका जिसका नाम आएगा, उसको देवेंद्र फडणवीस छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। उन्होंने भी बोला है, कोई कितना भी बड़ा हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन अगर कुछ भी हवा बनाने की और किसी के साथ फोटो दिखा, किसी के साथ नहीं दिखा, तो इस हत्या के जो दुर्दैवी घटना है, लेकिन हत्या के मामले में किसी का भी नाम हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इतना साफ कहने के बाद रोज वही कहना, ये तो बात ठीक नहीं है। उनके ऊपर अभी चार्जशीट फाइल होगा, तुरंत उनको मौका लग गया है। हर एक वो जो अपना पहला जो एक्सटॉर्शन का गुना था, उसके बाद में फिर ये हत्या के गुना में अभी उनकी इंक्वायरी चल रही है, अभी मैटर कोर्ट में है। ये सब दिखता है, रोज सबको पता है। लेकिन फिर रोज उठ के मीडिया में ये बोला जाए कि इनका इस्तीफा लो, उनका इस्तीफा लो, उनका, इससे काम नहीं चलता है। सर आप ही से सीखा है। जो नौबत आएगी तो देवेंद्र फडणवीस किसी की भी मुलाहिजा रखेंगे नहीं। सर बीजेपी से ही सीखा है, भी इस्तीफा ले सकते हैं। सर बीजेपी से ही सीखा है ना सर, ऐसी क्या बात है? 2.5 साल से वाल्मीकि कराड को अरेस्ट नहीं कर पाए, ये सरेंडर हुआ है सर। बचेगा नहीं, हेमंत कामले साहब, हाथों बचेगा नहीं। आई एग्री विद यू सर, आई होप सो सर, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो। प्रदीप पेशकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो। हेमंत कामले साहब, यू वांटेड टू से समथिंग प्लीज। नहीं, मैं दोनों की ये जुगलबंदी सुन रहा था। देखिए कैसे ना कि दोनों भी पार्टियां जो है, एक कांग्रेस से, बीजेपी से, बीजेपी पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली पावर में, बीच में जो 2.5 साल था। अब देखिए कैसे है ना कि वाल्मीकि कराड एक दिन में तो बड़ा नहीं हुआ। अब जो केसकर साहब कहते हैं, केसकर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। मधु कोड़ाकर आपने आरोप किए थे, मधु कोड़ा जेल में गए थे जी, बराबर है। फिर 2G स्पेक्ट्रम या 3G स्पेक्ट्रम घोटाले में कितने लोग अंदर गए थे, उनके आरोप सिद्ध हो गए? नहीं हुए। 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के आरोप थे, मधु कोड़ा पर भी आरोप थे, आरोप सिद्ध हो गए? नहीं हुए। सुरेश कलमाड़ी का तो पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया, आप इस बात को मानते होंगे। आपकी ही सरकार जब 1995 से लेकर 1999 तक की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, उसमें शोभा फडणवीस, महादेव शिवनकर, रविंद्र माने अनेकों पर आरोप हुए थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब धनंजय मुंडे के इस्तीफा देने में क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या है? उनकी वाल्मीकि कराड के साथ जो भी साठगांठ है उसके वीडियो सब जग जाहिर हो गए। उनके जो भी है, उन्होंने खुद माना कि वाल्मीकि कराड मेरा आदमी है। उसके बावजूद वाल्मीकि कराड को इस तरह बचाया क्यों जा रहा है? जो भीड़ की पूरी, मतलब भीड़ की जनता आज उनके किस्से बाहर निकल रहे हैं उनके, और सुरेश दत्त जैसा आपकी पार्टी का आदमी, आपके पार्टी के एमएलए उन पर इतने आरोप कर रहे हैं, उसके बावजूद धनंजय मुंडे को इतना सेफ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो अजित पवार साहब के बहुत खास है। अब अजित पवार साहब भीड़ के पालक मंत्री बन गए, गार्जियन मिनिस्टर बन गए। ये क्या है? हम भारतीय जनता पार्टी को या आप पार्टी विद डिफरेंस कहते थे, लेकिन अब कहना पड़ता है पार्टी इज नॉट डिफरेंट, इट इज सेम लाइक कांग्रेस। कांग्रेस को जिस तरह से आपने आरोप किए, इतने सालों से आपने कांग्रेस से जिस तरह घेर रखा था, आपकी पार्टी भी उसी तरह से कहीं न कहीं बर्ताव करेगी। आप भ्रष्टाचार के आरोप करते रहे और भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेते रहे। आपने अजित पवार को सिविल 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले का आरोप किया, उनको अपने पार्टी में लिए। ऐसे कितने नाम गिनाओ कि आपने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सुनिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, या जितने पार्टियां हैं जो अपोजिशन में थी, उतने जितने लोगों पर आपने आरोप किए सबको अपने पार्टी में लिए। अब
महाकुंभ के पहले ही आपने कहां से कल से लेके आए गंगा जल के और उनके ऊपर उड़ेल दिए और उनको शुद्ध करके अपने पार्टी में लेके पार्टी डिफरेंट का नारा लगा दिया। देखिए, आप अगर आप कहते हैं सिर्फ आरोप करना ये नहीं है, सही नहीं है, उसके अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आपने कौन से प्रूफ दिए थे? मधु कोड़ा जी के या 2G स्पेक्ट्रम के गोल्ड घोटाले के, कॉमनवेल्थ घोटाले के कौन से प्रूफ दिए थे जो प्रूफ आपकी सरकार आने के बाद प्रूव नहीं हुए? बोलिए पेशकर साहब, बोलिए। जवाब दीजिए किसका इन्होंने पेशकर साहब बोलिए, पेशकर साहब, हेमंत जी का जवाब। सत्ता की मजबूरी है, सत्ता की मजबूरी। पेशकर साहब, पेशकर साहब, ऐसा है, इसका मतलब ये है, इनको महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र पुलिस पर इनका भरोसा नहीं है, ये कोर्ट पर इनका भरोसा नहीं है, हर व्यवस्था पर ये डाउट खड़ा करेंगे, क्योंकि तब तक रुकिए ना, ये इंक्वायरी हो रही है, कोर्ट में मैटर है, अभी इंक्वायरी में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसके जिसके नाम आते हैं। कोई बोलेगा मीडिया में जाकर, उसके बजाय वो वहां गवाही दे, वहां कोर्ट में जाए, किसका नाम लेना है उसका नाम ले लो, वहां जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। तब तक आपको धीर नहीं है, तब तक आप रुकेंगे नहीं, सिर्फ हवा में बातें करते रहेंगे, किसका भी नाम लेते रहो। भाई है उनका ताल्लुक तो आएगा सामने, आप भरोसा तो रखो। इसका मतलब आपका भरोसा नहीं है क्या पुलिस पर? महाराष्ट्र पुलिस सही काम करेगी तो आप व्यवस्था पे अविश्वास मत उठाओ। सर, इन्होंने महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर गैर विश्वास जताया था, तब भी इन्होंने तब जब देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन लीडर थे, उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तब तो इन्होंने महाराष्ट्र के पुलिस पे कहाँ विश्वास जताया था? अरे ये तो सत्ता के जो रूलिंग है उसके ऊपर रहता है। राइट, so let's ask, fine. Kamble साहब, you want to say something? Kamble साहब, are you satisfied with पेशकर साहब आंसर? देखो, उसमें पुलिस गिल्टी थी, उसमें क्या किया आपने? आपने क्या किया? तो उसमें पुलिस गिल्टी थी, जहाँ 4 साल में आपने क्या बोलेंगे? क्या साबित किया आपने? पुलिस के ऊपर किसी के ऊपर एक्शन ली? जिनके ऊपर कॉल रिकॉर्डिंग के चार्जेस है, जिन्होंने पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपने तो वन सेकेंड सर, गोपाल तिवारी जी, वन सेकेंड, हेमंत कामले जी वांट्स टू से समथिंग। जी, फाइनल वर्ड टू यू, हेमंत कामले साहब, प्लीज गो अहेड। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि मैं मतलब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए ईश्वर साहब जी। ये आरोप करना, मतलब आरोप तो इन्होंने भी किए थे, जितने भी बार ये अपोजिशन में थे, विपक्ष में थे, इन्होंने आरोप किए थे अजीत पवार के खिलाफ, जो इन्होंने टेम्पो भर के, ट्रक भर के, जो इरिगेशन के, जो घोटाले के जो प्रूफ किए थे, किरण सुमैया जी ने बहुत सारे लोगों पर जो आरोप किए, इन आरोपों का क्या हुआ, इसका इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। ना तो किसी को इस पर अरेस्ट की गई, और जिनको अरेस्ट की गई दिया गया। तो मैं यही सब मैं कहना चाहता हूँ कि इसकर साहब, पार्टी इज नॉट डिफरेंट, पार्टी इज नॉट डिफरेंट, पार्टी विद द डिफरेंस इज नो लॉन्गर डिफरेंट, नाउ यू बिकम द सेम, इट इज द न्यू कांग्रेस। Yes, this is the new Congress. This is the saffron Congress. That's right. This is the saffron Congress. That's a wonderful definition. Actually, अब तक इसको पोसते रहे कांग्रेस को, लेकिन आपकी कांग्रेस अब सैफ्रॉन कांग्रेस हो गई है। This is the new name for you. वो कहते हैं ना सर, हीर रांझा की जो कहानी है, रांझा बोल के हीर आपे रांझा हो गई, सर वही आपका हाल हुआ है। कांग्रेस करके आप खुद कांग्रेस हो गए। धन्यवाद साहब। Thank you so much. मुझे कई दूसरे प्रोग्राम right, we are also ending, sir. प्रदीप पेशकर साहब, always a pleasure talking to you. खूब धन्यवाद। महाकुंभ के लिए आप सबको बहुत बधाई, और कल मौनी अमावस्या है, उसकी भी आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। एक बात राजीव जी, मैं बोलिए साहब, मैंने महाकुंभ का जो आयोजन है, इसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का,
वहाँ के प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इतने बड़े पैमाने पर लोग आने के बाद नो डाउट। एक बात ध्यान में लाता हूँ, जो 1957 में महाकुंभ था, तब उस समय के प्रधानमंत्री जब गए थे व्यवस्था देखने के लिए, पंडित नेहरू जी, और यूपी के सीएम थे पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत। वीडियो में आपके मीडिया ग्रुप पे डालता हूँ थोड़ी देर में। सर है, सबके पास है सर। थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू। Oh well, I don't think प्रदीप पेशकर साहब को आप यूज कॉट बिट ऑफ अ पॉइंट। हाउ डज ही रिप्लाई टू ऑल दैट? सारी उम्र आप अजीत पवार को कोसते रहे, बोलते रहे सबसे ज्यादा करप्ट आदमी, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और सभी लोग आज की तारीख में आपके साथ हैं और आप ही के साथ दिख रहे हैं। The other thing, other way if you see, फडणवीस साहब वो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा क्लीन चिट सबको दी है। क्लीन चिट पहले आरोप करते थे और उससे क्लीन चिट। सर आप देखिए ना 2G स्कैम में आरोप क्लीन चिट। सर 2G स्कैम में मैं अपने दर्शकों के सामने बात रखना चाहता हूं, जितने भी लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में गिरफ्तार हुए 2G स्कैम में, उन सबको बेल मिल गई और चार्जेस उनके खिलाफ तकरीबन ड्रॉप हो गए। अपील की है सीबीआई ने, अभी तक अपील चल रही है पिछले 10 साल से। सब लोग मोदी जी के कार्यकाल में सब लोग जेल के बाहर हैं, और तो छोड़िए सब पार्लियामेंट में कनी मोजी हो गई, ए राजा हो गए, सब लोग बाहर आ गए सर, कोई अंदर नहीं है। और जैसा मधु कोड़ा की बात कर रहे थे, हमारे मित्र भी थे उसमें, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, वो आज बीजेपी में हैं। और तो और छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार भी थे उत्तर प्रदेश से। ऐसी क्या बात? वाल्मीकि कराड इतने, it has become a very high profile, the whole Maharashtra, the whole nation is watching this प्रकार से चल रहा है जी। In spite of that, now you see that he is resting in ICU. Now whatever produced, because जो demands हो रहा है locally कि आप इस केस को कहीं और ट्रांसफर कीजिए, because being in Bid, आप you don't expect that some Santosh the Deshmukh will get justice. The death of he was. अरे भाई ये कहा जा रहा है, इतने होने के बावजूद, सीएम के टोटली इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद, अगर वाल्मीकि कराड is resting in ICU today, it's a disgrace, mockery of justice. It's a disgrace, sir. But the fact remains, तो आप कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। As people, Pradeep ji, as the accusations are flying thick and fast all around, one of the biggest allegations is that most of the policemen there owe their positions to this fellow. Yes, sir. And his political mentors. बिल्कुल। I don't know how far that is true. I hope it is not, because I have full faith in the Maharashtra police and in the Mumbai police. I don't think the system could have become so corrupt unless it has. We don't know. But the fact remains, at the moment, we are facing a situation where the BJP local unit is demanding Mr. Dhananjay Munde's resignation. And Mr. Devendra Fadnavis, the chief minister, is unable to do anything about it in spite of the fact that he's from the BJP. I mean, at least why? To show that, being fair where justice is concerned, you need to get Mr. Walmik Karad out from that hospital, into... So, sir, at least some action against Mr. Munde. He can be sent on leave. बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये कहा जा सकता है कि जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक आप मंत्री ना रहें, आप बाहर आ जाएं, उसमें क्या है? And the way he moves around with total authority, a minister, and this प्रकार से involvement, it's not a small thing. You murdered the person. The sarpanch, the local sarpanch. Yes, sarpanch को murder हो गया, and brutally murdered, and still you find that. और वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वो जो विंडमिल कंपनी थी, उनसे 2 करोड़ की मांग की गई थी, और ये मर्डर उसकी वजह से हुआ है। और अभी आगे जाके उजागर एक के बाद एक चीजें, रोड पे एक्सटॉर्शन, कंस्ट्रक्शन पे एक्सटॉर्शन, हर चीज पे एक्सटॉर्शन, जहां पर भी कोई काम हो रहा था, बीड़, लातूर और एक और इलाका में, ये तीन इलाकों में, परभनी, ये 3 इलाकों में जहां पर भी कोई काम हो रहा था, वहां का कुछ हिस्सा इधर पहुंच रहा था। अब अजित पवार जी अपने ही सभा में कह रहे हैं कि आई विल नॉट टॉलरेट टेंटेड एक्ट्स एंड टेंटेड लीडर्स, और कल ही उनके एक एक्स कॉर्पोरेटर कोई बिल्डर को मारपीट कर रहा है रोड पर, लाइक अ रेसलर इज थ्रोइंग हिम ऑन द ग्राउंड एंड आस्किंग मनी फॉर एक्सटॉर्शन, एंड ही सेज मी तेना वार्निंग दिला है। कितने बार वार्निंग दोगे यार? शो सम एक्शन दिखाइए। It actually sounds like a film. It actually sounds like one of those old films. वो क्या थी, वो अर्ध सत्य और आक्रोश, वो गोविंद निहलानी की जो पिक्चर हुआ करती थी वगैरह वगैरह। ये दिस हैज कम टू लाइफ।
ये मतलब earlier we used to think that these are all stories. Yes, these are not fables, these are real. Rural areas में all these leaders are like gangsters, mafia operating out there. I like all the dons. बिल्कुल, और they're not, they don't stop from going even physical. खुद ही मारपीट कर लेते पैसे के लिए. जी दुरुस्त बात. लेकिन प्रदीप जी, मेरा ये कहना है कि इसको लेकर के कांग्रेस क्या कर रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. अभी तक तो हाहाकार मच जानी चाहिए थी, जिस तरीके से बीजेपी कर रही थी. 2G स्कैम को लेकर के आपको याद है, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि 2G स्कैम ऑक्शन में, अलॉटमेंट में देश को 1,73,000 करोड़ का घाटा हुआ है. 1,73,000 करोड़. मुझे अभी तक याद है, अडवाणी जी की एक सभा थी जिनमें उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा फिगर भी होता है, मुझे मालूम नहीं था. लाल कृष्ण अडवाणी जी का एक कथन है. और उसके बाद जब एक्चुअल ऑक्शन हुई तो 20,000 करोड़ भी नहीं मिले. मेरा यह कहना है कि भाई 2G स्कैम के जितने भी आरोपी थे आज सब बाहर हैं पार्लियामेंट में. और आपके यहां पे, हमारे यहां पे महाराष्ट्र में जितने भी लोग जिनको चक्की पिसवाने वाले थे सब लोग, वो आज की तारीख में सरकार में हैं. तो ये क्या चल रहा है? और ताज्जुब की बात यह है, हैरानगी की बात मेरे लिए यह है प्रदीप जी, और सभी दर्शकों के सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं कि कांग्रेस क्या कर रही है. उनको सत्ता में नहीं आना, मुझे लगता है दे फॉरगॉटन हाउ टू एजिटेट, हाउ टू कम ऑन द स्ट्रीट, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मीडिया मैनेजमेंट क्या होती है. In fact, if you notice, it is only the Marathi channels which are carrying this thing about Beed, Latur, Jalgaon, Beed, Latur, Jalgaon and Parbhani. उसके बारे में जो ये बातचीत हो रही है, बाकी जो नेशनल मीडिया है, इतने बड़े बड़े चैनल है, they're only concerned with सैफ अली खान, कि सैफ अली खान सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, अंदर क्या था, कोई अफेयर चल रहा था, कुछ चल रहा था, as if that is the most important news of the day. अरे यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इज इन द डॉक, और आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप सैफ अली खान के बारे में बात कर रहे हैं. अजीब व गरीब मसला है. कर क्या रहे हैं आप लोग? Anyway, but I'm very happy about one thing. Various layers, SIT अपॉइंट किया, जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, दूसरे लोकल इंक्वायरी चल रहा है, तीन स्टेजेस overlapping each other, but there's no justice done. No justice. But there's one thing which I'm very, very happy about, of course, that the Prime Minister has mentioned Coldplay. Yes. No, he's definitely generating business. ना एक इवेंट जो हो रहा है, जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, स्पिरिचुअल प्लेसेस जो अपने धरोहर को आगे बढ़ाना है, he is doing it a fantastic job. There's no, और आज he has talked to Trump also. And Mr. Trump has said very, very clearly Yes. that Modi ji will be visiting the US in February. बिल्कुल. So much for all the naysayers. Well, that's just about it. In tonight's show, आज के शो में सिर्फ इतना ही. एक बार फिर आपको बता दें, कल मौनी अमावस्या है. इट इज द होलिएस्ट डे. ये कहा जाता है ऑल द एनर्जीज, गुड, बैड, इविल, नोबल, प्योर, दे विल ऑल बी इन अटेंडेंस टुमारो. तो आपको जो चाहिए, अगर आप सिंसियरली विश करें, दिल से अगर आप चाहें, दिल से अगर आप प्रार्थना करें, तो आपको मिल जाएगी. ये कहा जा रहा है. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमारा चैनल देखा और इसी तरह आप देखते रहें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि घंटी बज गई. अब तो वो जो बेल आइकन है उसको जरा क्लिक कर दें. The fastest growing channel. The fastest growing channel on YouTube. और that's it. Please do send in your comments. We would love to know what you think. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.